Hello students, today I am going to discuss the topic polynomial addition. So first we know how to represent a polynomial in computer's memory. Now after that we will discuss the addition algorithm. So polynomial representation, as we know, the one variable polynomial, so it is a n degree polynomial with n plus 1 coefficient, that is a cn, cn minus 1, cn minus 2 to c0. Okay, in order of decreasing exponent, that is x raised to the power n, then x raised to the power n minus 1, x raised to the power n minus 2 and so on. तो आप देख सकते हैं कि जो एक्सपोनेंट है दैट इज ए पावर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, दिस इज n, n minus 1, n minus 2, n minus 3. So this representation lead to very simple algorithm for addition and multiplication. So now, how we can represent a polynomial in computer's memory in the form of linked list? So before this, we will discuss the implementation of linked list with the help of insertion at last function. So वही concept हम यहाँ पर use करेंगे. So we know that linked list basically that is a collection of node, and each node consists of two type of field. So यहाँ पे फील्ड जो है, यहाँ पर कंपोनेंट्स जो हैं, इंफॉर्मेशन के कंपोनेंट्स जो हैं वो दो हैं. द फर्स्ट इज ए कोफिशिएंट एंड अनदर वन इज ए एक्सपोनेंट, एंड द नेक्स्ट एड्रेस फील्ड कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड. सो देयर आर three fields. The first is a coefficient field, this one, and the second is a exponent field, and third one is a next address field. So it is a pointer which contain the address of next node. So for example, suppose my polynomial is 10x की power 5 plus 4x की power 3 minus 7x square plus 9. So coefficient 10, exponent 5, exponent decreasing order में, that is 3 and then 2, or here you can write x raised to the power 0. So first we create a node, okay, with coefficient 10. आप देख सकते हैं this is 10, so this is 10, and the exponent 5, so this is 5. So this is the first element of your polynomial. And the second polynomial represented as a second node. Now here the coefficient is 4 and exponent is 3, so this is also 3. Now here, now the next field of n1 keep the address of next node, that is n2, so it will point to this one. Now the third element of your polynomial, that is a minus 7 is coefficient and the exponent is 2. Now next field of n2 keep the address of third node, that is n3, so it will point to this one. At last, this is 9 and coefficient is what? So coefficient is x raised to the power 0. You can write here x की power 0, okay, that is 1. So once again create a node, and coefficient is 9 and the exponent is 0. Now the next field of third node to contain the address of last node, that is this one. And here is nothing. So यहाँ पर आपको क्या रखना है? That is a null. So this is null, and the entire linked list is accessed by the head. And suppose the name of head is P. So this linked list is accessed by P. Okay, so the P के जो content है वो क्या है? वो address of first node, that is %n. So this is the linked list representation of polynomial. Now let us move to how to add it to polynomial. So first we take the example. Suppose my first polynomial is capital A, which consists of 4 elements. आप यहाँ पे देख सकते हैं, there are 4 elements, and the second polynomial contain 6 elements. Okay, so आप सबसे पहले तो ये सोचिए कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे. So definitely अगर polynomial को एडिशन के लिए बोला जाएगा तो आप सबसे पहले फोकस करेंगे एक्सपोनेंट के ऊपर. सो एक्सपोनेंट को कंपेयर करेंगे. इफ एक्सपोनेंट इज सेम देन कोफिशिएंट आपस में ऐड हो जाएंगे. ओके, नाउ अदरवाइज एक्सपोनेंट अगर मैच नहीं करते हैं तो जो भी लार्जर एक्सपोनेंट है उसका कोफिशिएंट जो है वो रिजल्ट में कॉपी होगा. सो पहले तो हम देखते हैं बाय इंस्पेक्शन एंड हैंड हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट फोकस ऑन द एक्सपोनेंट पार्ट
जैसा आपको दिख रहा है दैट इज ए 14 14. सो 14 14 बोथ आर सेम, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर. सो कोफिशिएंट 8 plus 3 will be equal to 11. Okay, so the first answer is 11 x raised to the power 14. Exponent तो आपका सेम ही रहने वाला है. Okay, this is 14, so this is also 14. Now after that, now focus on the next. The task is over. आपका फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के साथ में आपका ऐड हो गया. Now you are here. अब आप फोकस करेंगे this is x raised to the power 8 and x raised to the power 10, but exponent are not equal, so the bigger one is 10. तो आप इसको यहाँ पर as it is कॉपी करेंगे नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर. सो दिस इज -3x की पावर 10. ओके, सो द टास्क इज ओवर. सो आप किसका टास्क ओवर हो गया? जो आपने 10 जो है यहाँ पे कॉपी कर लिया, तो डेफिनेटली अब आपका फोकस किसके ऊपर होगा? 8 के ऊपर. सो राइट नाउ यू आर हेयर. Oh, this is x की power 8 and this is also x raised to the power 8. So exponent are same and coefficient को आप add कर सकते हैं. So this is +2 and this is -2. So these are cancels. ये दोनों टर्म आप कैंसिल हो जाएंगे. तो आपको यहाँ पे आंसर नहीं लिखना है, नीचे नहीं लेके जाना है. आप सिर्फ अपने आप को फोकस करेंगे नेक्स्ट एक्सपोनेंट के ऊपर, like 7 and 6. तो you are here right now. Okay. So x raised to the power 7 and x raised to the power 6. Okay, so exponent आपस में मैच नहीं होते हैं. तो अब इसमें देखेंगे लार्जर एक्सपोनेंट कौन सा है, that is this one. So definitely आप इसको यहाँ पर नीचे कॉपी करेंगे. So it will be equal to 4x raised to the power 7. Okay, so इसको टास्क ओवर होने की वजह से आप फोकस ले जाएंगे अपना नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर, फर्स्ट पॉलिनोमियल के. So this is x raised to the power 6. सो आप कंपेयर करेंगे x की पावर 6 एंड x की पावर 6, वो एक्सपोनेंट सेम है तो कोफिशिएंट आपके आपस में ऐड होंगे. सो 11 एंड -3 को अगर आप कंप्यूट करेंगे तो आंसर आपके आएगा दैट इज 8. सो 8x रेज़ टू की पावर 6. ओके, सो एक्सपोनेंट को कंपेयर करने का टास्क जो है वो खत्म हो जाता है. तो अब आपको ये देखना होगा कि रिमेनिंग टर्म्स किसके बचते हैं, फर्स्ट पॉलिनोमियल के रिमेनिंग टर्म्स हैं या फिर सेकंड पॉलिनोमियल के. जिसके भी टर्म्स बचते हैं उसको आप एज इट इज आंसर में यहाँ पे कॉपी करेंगे. सो आफ्टर दैट या 5x की पावर 4, नाउ 9x की पावर 0 दैट इज ओनली 9. सो इसको आपने कॉपी किया. सो दिस इज योर आंसर. नाउ कम टू हाउ टू रिप्रेजेंट इन ए लिंक लिस्ट. सो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉलिनोमियल को देखेंगे. नाउ दिस इज माय फर्स्ट पॉलिनोमियल. सो कंप्यूटर की मेमोरी में अगर हम फीड करेंगे, सो कोफिशिएंट इज 3 एंड 14. आप देख सकते हैं दिस इज 3 एंड दिस इज 14. तो आपने यहाँ पे भी लिखा है दिस इज 3 एंड देन 14. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज 2 8, आपस में लिंक किया. नेक्स्ट टर्म 4 7, आपस में आपने लिंक किया. नाउ द -3 एंड देन 6, आपस में लिंक किया. नाउ लिंक लिस्ट आपकी ओवर होती है. सो यहाँ पे आपको पुट करना है दैट इज नल. And the entire linked list is accessed by capital A. Okay, so capital A is my head right now. Okay, now in the same manner, अब आप किसको करेंगे कॉपी, सेकेंड पॉलिनोमियल को कंप्यूटर की मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. So this is 8 14. So you can see here this is 8 and this is 14. तो आपने यहाँ पे नोट जो क्रिएट किया इसमें दो फील्ड हैं, कोफिशिएंट एंड देन एक्सपोनेंट. Now the next is -3 10, आपस में लिंक किया. -2 8, आपस में लिंक किया आपने. 11 6, आपस में लिंक किया आपने. So 5 4. Okay, so this node contain the address of this one and then 9 0. The last one is because 9 is constant, तो आप लिख सकते हैं x 9 into x raised to the power 0. So exponent is 0. So the fifth node contain the address of 6th node. Okay, and last is null and the entire linked list accessed by the head and the name of head is b. Okay, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है उसका रिप्रेजेंटेशन आपने यहाँ पे दिया एंड द सेकेंड पॉलिनोमियल का जो कंप्यूटर में रिप्रेजेंटेशन आपने यहाँ पे दिया. सो नाउ कम टू एल्गोरिथम पार्ट. सो हमने आपको कैलकुलेशन कंप्यूटेशन किस तरीके से एक्सप्लेन किया कि आपको फोकस किस पे करना है, फर्स्ट पॉलिनोमियल के फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड पॉलिनोमियल का फर्स्ट एलिमेंट और उनके भी एक्सपोनेंट पार्ट के ऊपर आपने फोकस करना है.
तो सबसे पहले फोकस करने के लिए इट मीन्स यू यूज द पॉइंटर, आपको दो पॉइंटर लेने होंगे, द फर्स्ट इज पी एंड सेकंड इज क्यू, और उनको फर्स्ट पॉलिनोमियल पे लगाइए पी को, और सेकंड पॉलिनोमियल के पहले नोड के ऊपर आप अप्लाई करिएगा क्यू को। सो स्टेप नंबर 1, इनिशियलाइज पी क्यू पॉइंटर टू पॉलिनोमियल लिंक लिस्ट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। सो पी इज इक्वल टू ए एंड क्यू इज इक्वल टू बी। आप देख सकते हैं दोनों जगह पॉलिनोमियल, अपने दोनों पॉलिनोमियल के ऊपर आपने पॉइंटर को अपॉइंट किया। ओके, नाउ आफ्टर दैट अब इनका आंसर आपको स्टोर करना है थर्ड लिंक लिस्ट में। सो कैपिटल सी इज ए थर्ड लिंक लिस्ट। ओके, सो यहाँ पर आप एक तीसरा लिंक लिस्ट बनाएंगे। सो फर्स्ट स्टेप नंबर 2, क्रिएट allocate a free memory space. It means C is equal to create a new node. So यहाँ पर आप एक नए नोड को यहाँ पे क्रिएट करेंगे, आप देख सकते हैं। ओके, नाउ द एड्रेस ऑफ दिस नोड किस में स्टोर होगा? C के अंदर। सो C कंटेन द एड्रेस ऑफ न्यूली क्रिएटेड नोड, और ये नोड आप क्रिएट करेंगे malloc फंक्शन की हेल्प से इन केस ऑफ C प्रोग्रामिंग। ओके, और D को भी आप C के ऊपर अप्लाई करेंगे। इट मींस D आल्सो कंटेन द एड्रेस ऑफ C। सेम है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपने हीप में आपने एक स्पेस क्रिएट किया 6 बाइट का, बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ नोड इज 6। सो D आल्सो कंटेन द एड्रेस ऑफ दिस नोड एंड कैपिटल C आल्सो कंटेन द एड्रेस ऑफ दिस नोड। सो नाउ आफ्टर दैट कंपेयर द एक्सपोनेंट पार्ट। और कब तक कंपेयर करेंगे? जब तक आपका P पूरे लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और लास्ट में आप जब तक नल तक नहीं पहुंचते। नाउ इन द सेम मैनर क्यू को भी आप लेके जाएंगे लास्ट तक, जब तक कि आपका क्यू का वैल्यू नल नहीं होता। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, रिपीट नेक्स्ट स्टेप्स टिल P is not equal to null and Q is not equal to null. सो हम यहाँ पे एक while loop का यूज करेंगे, जब तक P और Q नल नहीं होते तब तक हम कंपेयर करेंगे एक्सपोनेंट पार्ट को। सो द फर्स्ट स्टेप नंबर 4, इफ exponent of P and exponent of Q are equal, so right now this entire thing is P and P का exponent is this one and Q का exponent is also 14. So both are same. यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? This is 14 and this is also 14. So coefficient part को आप add करेंगे. So right now what is the value of X? Now the coefficient is 3 and coefficient is 8. So this is 3 plus 8. It is equal to 11. So X का वैल्यू कितना होता है? आपका X का वैल्यू जो आपके होता है that is 11. Okay. Now if X is not equal to 0, then call the attach function. It means because 11, so 11 is not equal to 0, then create a new node with the coefficient X. Okay, आपका नया कोफिशिएंट क्या होगा? X, that is 11. और एक्सपोनेंट क्या होगा? इधर P का एक्सपोनेंट आप ले सकते हैं या फिर Q का एक्सपोनेंट ले सकते हैं। सो दैट इज ए 14. ओके, सो कॉल द अटैच फंक्शन। सो अटैच फंक्शन किस तरीके से काम करता है? इसका रोल क्या होता है? ये एक नया नोड क्रिएट करेगा 6 बाइट का। ओके, इन केस ऑफ टर्बो C, और उसमें 3 फील्ड्स होंगी, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट एंड नेक्स्ट एड्रेस फील्ड। ओके, सो वहां पे हम उसके कोफिशिएंट को X के साथ इनिशियलाइज करेंगे। इट मींस 11 के साथ में इनिशियलाइज करेंगे, और एक्सपोनेंट P का एक्सपोनेंट है। सो राइट नाउ P का एक्सपोनेंट कितना है, या Q का एक्सपोनेंट? दैट इज आल्सो सेम, दैट इज 14. ओके, एंड D इज द टेल ऑफ योर थर्ड लिंक लिस्ट। सो अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट लिया था, हेड कॉन्सेप्ट से हम लिंक लिस्ट को क्रिएट करते थे, हम यहाँ लिंक लिस्ट को इंक्रीज करेंगे, इनहांस करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, टेल में ऐड करते हो। सो D जो है वो टेल का काम कर रहा है हमारी लिंक लिस्ट में। सो अटैच फंक्शन को जैसे ही कॉल करते हैं, सो अटैच फंक्शन इज आल्सो, इट इज ए, देयर आर सम स्टेप्स, देयर आर 5 स्टेप्स। दिस इज द अटैच फंक्शन। सो आपने यहाँ पे 3 पैरामीटर्स पास किए हैं। द फर्स्ट पैरामीटर इज ए कोफिशिएंट, दैट इज 11, एंड एक्सपोनेंट, दैट इज 14, एंड द लिंक लिस्ट, that is the tail of your third linked list. Okay, C तो अपनी जगह पे रहेगा और D जो है उसका tail है। तो this attach function first create a memory. So आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, इस जगह पर आपका एक मेमोरी क्रिएट होगा with the help of malloc function, और इसका एड्रेस किसके पास जाएगा? I के पास। So I
is assigned to this location. Now the exponent of I, यहाँ पे आप देख सकते हैं exponent कितना है I का. What is exponent? That is a e. It means 14. तो 14 आपका यहाँ पे कॉपी हो जाएगा. It means आपका यहाँ से 14 जो है वो कहाँ पे जाएगा, इस एरिया में. This is the exponent part. So yes, 14 आपका यहाँ पर आ गया. या कोफिशिएंट, नेक्स्ट स्टेप अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे तो आप कोफिशिएंट को कॉपी करते हैं. दैट इज द टर्म सी, दैट इज 11. सो 11 जो है वो आपका कहाँ पे कॉपी होगा, इस एरिया में. सो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा 11. So this is 11. Now the next step, step number 4, the next of D becomes I. So what is D? This whole thing is D, and D का next is this one, और D के next में आप क्या डालते हैं, that is I. It means आप इसको इसके साथ में लिंक कर रहे हैं. So it is equal to, it assigned to this area. Now after that D becomes the new node. इसका मतलब D को आप आगे बढ़ाएंगे. So D is equal to I, move pointer D to the new last node. तो D को आपने last node के ऊपर switch कर दिया. Okay, right now the tail of linked list is D. So there are 5 steps. Whenever steps is over, तो इसका local variable जो I था वो यहाँ से delete हो जाएगा और control वहीं पहुंचेगा जहाँ पे आपने function को define किया था. So right now you are here. So ये आपने कब कॉल करना है टाइप फंक्शन, जब x का वैल्यू 0 नहीं है. अगर x का वैल्यू 0 है तो कॉल नहीं करना है. सो द टास्क इज ओवर. द नेक्स्ट, अब आपने p को भी इनहांस करना है क्योंकि आप यहाँ पर पॉइंटर p है, यहाँ पर पॉइंटर q है. सो डेफिनेटली आप जो फोकस करते हैं वो नेक्स्ट एक्सपोनेंट पे, यहाँ पे भी आप नेक्स्ट एक्सपोनेंट के ऊपर स्विच करते हैं. इट मींस पॉइंटर को आप स्विच करेंगे नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर. सो p को भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ाएंगे लाइक दिस, p इज इक्वल टू p नेक्स्ट, और यहाँ पे q को भी आप आगे लेके जाएंगे नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर. राइट नाउ q इज हियर, q इज इक्वल टू q नेक्स्ट. ओके, नाउ वंस अगेन चेक. आप क्या चेक करेंगे यहाँ पर, एक्सपोनेंट पार्ट. सो ये तब तक चलना है, आप देख सकते हैं जब तक p और q में से कोई एक नल नहीं होता. ओके, लिंक लिस्ट जब तक खत्म नहीं होता. सो राइट नाउ p इज नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि p के पास में सेकेंड नोड का एड्रेस है फर्स्ट पॉलिनोमियल के, और q के पास में सेकेंड पॉलिनोमियल के सेकेंड नोड का एड्रेस है. सो दैट इज नॉट इक्वल टू नल. देन चेक द एक्सपोनेंट पार्ट. दिस इज 8 एंड दिस इज 10. ओके, इक्वल नहीं है तो डेफिनेटली इफ p एक्सपोनेंट इज स्मॉलर देन q एक्सपोनेंट, इसका मतलब q का एक्सपोनेंट ग्रेटर है, तो आप अपनी थर्ड लिंक लिस्ट में इस पूरे के इंटायर नोड को कॉपी करेंगे. कैसे करेंगे, यानी इट मींस यू कॉल द अटैच फंक्शन. अटैच फंक्शन, उसका कोफिशिएंट क्या होगा, सेम जो q का कोफिशिएंट है. एक्सपोनेंट क्या होगा, जो q का एक्सपोनेंट है, सेम q का कोफिशिएंट एंड q का एक्सपोनेंट. सो जो भी बिगर होता है, यहाँ पे q ग्रेटर है, सो q का कोफिशिएंट और q का एक्सपोनेंट के साथ में फंक्शन को आप कॉल करेंगे. सो यू कॉल हियर. सो द फंक्शन फंक्शनैलिटी ऑफ दिस फंक्शन इज सेम. सो फर्स्ट क्रिएट ए नोड. तो आपका एक नोड क्रिएट हो गया, बॉटम में आप देख सकते हैं, और उसका एड्रेस i के पास है. और हियर व्हाट इज द एक्सपोनेंट पार्ट एंड व्हाट इज द कोफिशिएंट पार्ट. सो डेफिनेटली कोफिशिएंट पार्ट एंड एक्सपोनेंट पार्ट विल रिमेन सेम जो q के हैं. सो 10 कॉपी होगा एक्सपोनेंट पार्ट में, एंड कोफिशिएंट -3 कॉपी होगा कोफिशिएंट पार्ट में. 10 एक्सपोनेंट में हो गया और -3 कोफिशिएंट में हो गया. सो नाउ आफ्टर दैट d के नेक्स्ट में आप नए नोड को अटैच करेंगे, क्योंकि ये नोड अभी अटैच नहीं है. सो इसको अटैच करने के लिए यहाँ पर एड्रेस डालना होगा इस नोड का. सो d नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा है d नेक्स्ट इज इक्वल टू i. ओके, दिस वन. सो इट इज इक्वल टू दिस वन. आप नीचे लिंकिंग हो गया, और d को फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ाएं, यानी d को मूव कर दें जो लास्ट नोड के ऊपर. सो d इज इक्वल टू i. राइट नाउ द टेल ऑफ योर लिंक लिस्ट इज d. ओके, हेड इज c, जो थर्ड लिंक लिस्ट है. ओके, नाउ टास्क इज ओवर. नाउ कम बैक, आप वहीं पे जाएंगे, और अब किसको एडवांस करेंगे, काम किसका पूरा हुआ, आपका पॉइंटर q कंप्लीट हो गया. सो q को मूव कर देंगे नेक्स्ट नोड के ऊपर. सो q इज इक्वल टू q नेक्स्ट right now here. Okay, now the close. अभी भी लिंक लिस्ट आपका कोई empty नहीं हुआ. Now focus. So repeat while p is not equal to null and q is not equal to null. Once again check
the exponent part. So right now exponent are same. Oh, very good. आपके एक्सपोनेंट सेम है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, कोफिशिएंट को आप सिंपल ऐड कर लीजिएगा. सो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ p, दैट इज a 2. okay, here is 2 plus here is what is the coefficient of q, that is -2. okay, oh 2 plus -2 it is equal to 0. okay, अगर आप यहाँ पे सम करेंगे 0, और ये अटैच फंक्शन तब कॉल करना था अगर 0 आता है तो नहीं करना है, बिकॉज 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज फॉल्स, देन डोंट कॉल अटैच फंक्शन, क्योंकि ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो गए. बट आप नेक्स्ट पोर्शन जरूर करेंगे, p को एडवांस करने का काम और q को एडवांस करने का काम आपका पेंडिंग है. सो p को एडवांस किया, p इज इक्वल टू p नेक्स्ट एंड q इज इक्वल टू q नेक्स्ट. ओके, सो इस तरीके से ये भी आपने मूव कर दिया पॉइंटर यहाँ पर. सो कम टू चेक योर लिंक लिस्ट इज आपका लिंक लिस्ट जो है वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ. राइट नाउ p का वैल्यू नल नहीं है, बिकॉज p कंटेन द सेकेंड लास्ट एड्रेस, ओके, एंड q कंटेन द लास्ट थर्ड एड्रेस. सो कंपेयर द एक्सपोनेंट पार्ट. हेयर the exponent of p is 7. आप देख सकते हैं यहाँ पर, where is p का exponent, this is 7, q का exponent is 6. बिगर कौन है, this one, तो डेफिनेटली आप इसको कॉपी करेंगे, अटैच फंक्शन को कॉल करेंगे विद कोफिशिएंट कौन सा होगा, जो भी ग्रेटर है. यहाँ पे p इस वक्त ग्रेटर है, तो p का कोफिशिएंट 4 और p का एक्सपोनेंट 7. सो अटैच फंक्शन जब कॉल करेंगे तो उसमें कोफिशिएंट किसका होगा, जो ग्रेटर होगा. सो राइट नाउ p इज ग्रेटर, सो p का कोफिशिएंट और p का एक्सपोनेंट के साथ में आपने अटैच फंक्शन को कॉल किया. व्हेनेवर यू कॉल अटैच फंक्शन, सो इट विल क्रिएट ए मेमोरी विद द हेल्प ऑफ मैलॉक फंक्शन. सो सबसे पहले आपका यहाँ पर एक नोड क्रिएट होगा. ओके, इसमें एक्सपोनेंट पार्ट जो है और कोफिशिएंट पार्ट है वो p से कॉपी होगा. सो 7, exponent is 7, so 7, and coefficient is 4, so 4 यहाँ पे कॉपी होता है. और प्रीवियस लिंक लिस्ट का जो लास्ट है, दैट इज अ टेल, उसके नेक्स्ट में आप न्यूली क्रिएटेड नोड को ऐड करेंगे. इट मींस यहाँ पर जो आप एड्रेस डालने वाले हैं, दैट इज d next is equal to i. ओके, यहाँ पे जो स्टेप लिखा हुआ है, सो इट इज इक्वल टू दिस वन. और आफ्टर दैट d is equal to i, जो आपका नेक्स्ट लाइन है, d को आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ाएंगे. ओके, सो यहाँ पे भी टास्क पूरा होता है. बट आफ्टर दैट आपको क्या करना है, p को एडवांस करना होगा नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर, क्योंकि इसको आपने यहाँ पे कॉपी तो किया और p को आप एडवांस करेंगे नेक्स्ट नोड की पोजीशन पे. सो p इज इक्वल टू p नेक्स्ट. ओके, सो राइट नाउ p इज नॉट इक्वल टू नल, बिकॉज p कंटेन द एड्रेस ऑफ लास्ट नोड और q का वैल्यू भी नल नहीं है. तो फिर से आपका ये लूप चलेगा, while लूप. नाउ राइट नाउ कंपेयर द एक्सपोनेंट पार्ट. नाउ वंस अगेन एक्सपोनेंट आर सेम. ओके, तो कोफिशिएंट आप ऐड करेंगे, दैट इज ए -3 एंड 11. इनको सम करेंगे तो आंसर आएगा 8. सो 8 इज नॉट इक्वल टू 0, देन कॉल द अटैच फंक्शन विद कोफिशिएंट इज x. एक्सपोनेंट आप किसी का भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है. So this is 6. So call the attach function. Okay. तो first create a node. आपका एक node create होगा. Okay. Now assign the field. तो आपका 6 यहाँ पे copy हो गया और compute किया coefficient part, that is 8. So 8 आपका यहाँ पे copy हो जाता है. Now the next portion of d is equal to i. So it will point to fourth node. Okay. और d को आपने आगे बढ़ाया. So d is equal to i. सो इस तरीके से d हमेशा टेल के ऊपर ही रहेगा और आपका लिंक लिस्ट जो है वो ग्रो करता जाएगा, आंसर आपका बढ़ता जाएगा. आप मैच भी कर सकते हैं. यहाँ पर आपने अभी तक यहाँ तक पहुंचे हैं. सो कोफिशिएंट 8, एक्सपोनेंट 6, सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, दिस इज 8 एंड दिस इज 6. धीरे धीरे आपका आंसर आता है. नाउ एडवांस आपका टास्क किसका कंप्लीट हुआ, आपने किसको कॉपी किया, आपने एक्सपोनेंट सेम थे तो p को भी एडवांस करेंगे और q को भी आप एडवांस करेंगे. So whenever you write a statement p is equal to p next, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, what about the p next? p next is null और null किस में assign हो गया, p में assign हो गया. So p is equal to null right now. Okay.
और Q को एडवांस करेंगे तो Q इज द सेकेंड लास्ट नोड ऑफ सेकेंड लिस्ट, ओके, बट Q नल नहीं होता, P आपका नल। सो इन दिस वे आपका जो लूप है, अगर आप फिर से टेस्टिंग पार्ट में जाते हैं, right now what is the value of P, that is null, and null is not equal to null, condition आपकी होती है false, and this is the end, so end operator, and the second is true हो या false हो, basically this is a true statement, so end operator बीच में लगाए तो whole statement is false, it means आपका while loop जो है वो terminate हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आप exponent को compare करने वाला task जो है वो आपका पूरा हो चुका है, ओके, आप जिस एक्सपोनेंट को कंपेयर कर रहे थे वो टास्क आपका कंप्लीट हो गया। सो आफ्टर दैट अब हमारे पास क्या बचा है, सो इट मे बी पॉसिबल कि आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल के रिमेनिंग टर्म्स बचे हों, या हो सकता है ऐसी कंडीशन आए कि आपका सेकंड पॉलिनोमियल के टर्म्स बचे हों, जैसे इस एग्जांपल में सेकंड पॉलिनोमियल के टर्म्स अभी बचे हुए हैं, ओके। सो सिंपल कॉपी द रिमेनिंग टर्म्स ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, ओके, आप सेकंड पॉलिनोमियल्स के टर्म्स को यहाँ पर कॉपी करेंगे। सो वाइल Q इज नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि जब तक Q का वैल्यू नल नहीं होता तब तक आप सारे टर्म्स को वन बाय वन करके रिजल्टेंट लिंक लिस्ट में कॉपी करते जाएंगे। सो कॉल द अटैच फंक्शन विथ कोफिशिएंट 5 एंड एक्सपोनेंट 4 के साथ में यहाँ पे आप कॉल करेंगे अटैच फंक्शन को, ओके। सो अटैच फंक्शन क्या करता है, इट विल क्रिएट ए मेमोरी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपने एक सबसे पहले ब्लैंक स्पेस हीप से डिमांड किया और वहां पर एड्रेस malloc फंक्शन ने i को दिया, i का एक्सपोनेंट इज 4, तो 4 यहाँ से कॉपी होगा, एंड i कोफिशिएंट इज 3, तो 5 कॉपी होगा, एंड d नेक्स्ट इज इक्वल टू i, सो d के नेक्स्ट में i जाता है, और d इज इक्वल टू i, सो d जो है वो लास्ट नोड के ऊपर असाइन होता है। सो द टास्क इज ओवर। नाउ आप किसको एडवांस करेंगे, क्योंकि Q बचा है तो Q ही एडवांस होगा नेक्स्ट नोड के ऊपर, सो Q इज इक्वल टू Q नेक्स्ट। आप यहाँ पे स्टेटमेंट आपको लिखना होगा Q इज इक्वल टू Q नेक्स्ट, ओके। सो Q आपका एडवांस हो गया। नाउ द व्हाइल लूप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज Q इज नॉट इक्वल टू नल, सो रिमेनिंग टर्म्स में भी एक बचा हुआ है। सो right now what is the value of Q? The value of Q is the address of last node, not equal to null, okay। तो आप while loop की बॉडी में इंटर करते हैं। now once again call the attach function and the coefficient of attach function में जो coefficient और exponent पास करेंगे वो Q का coefficient और Q का exponent होगा। so call attach function, first you create a memory और address आता है i के पास, exponent is 0 एंड कोफिशिएंट इज 9 कॉपी होता है, और d नेक्स्ट इज इक्वल टू i, सो d के साथ में i का अटैचमेंट होता है, और d को आप मूव करते हैं नेक्स्ट नोड के ऊपर, सो दिस वन। नाउ आफ्टर दैट Q को एडवांस करेंगे नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर, सो व्हेनेवर यू पास Q टू द नेक्स्ट लोकेशन तो Q बिकम्स नल। सो इन दिस वे Q का वैल्यू नल हो गया तो दोबारा से लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ओके, बिकॉज आप जब से दोबारा से इस लूप की बॉडी में आएंगे क्योंकि किस वैल्यू के साथ नल, सो नल इज नॉट इक्वल टू नल, सो डोंट अलाउ, नो परमिशन। सो द टास्क इज ओवर, आपका आंसर कंप्लीट आ चुका है, बट यहाँ पे लिंक लिस्ट कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे कुछ कमियां दिख रही हैं कि सबसे पहले लिंक लिस्ट में यहाँ पे नल होना चाहिए लास्ट में। सो लास्ट स्टेप में डी के नेक्स्ट में आप डालेंगे नल, सो यहाँ आप स्टेप लिखेंगे स्टेप नंबर 9, डी इज इक्वल टू नल, एंड दिस इज द एडिशनल नोड। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपका स्टार्टिंग यहाँ से हुआ है, तो सी के नेक्स्ट में आपको ये डालना है, और इसको आप डिलीट करेंगे, डिलीट मतलब हीप को दोबारा लौटाएंगे। तो आप एक पॉइंटर लेते हैं दैट इज ए टी, सो टी को आप लगाते हैं सी के ऊपर लाइक दिस, और सी को एडवांस करेंगे, सी इज इक्वल टू सी नेक्स्ट। सो व्हेनेवर यू राइट सी इज इक्वल टू सी नेक्स्ट, तो ये सेकंड नोड के ऊपर स्विच कर जाएगा सी, एंड द सेकंड नोड इज दिस वन। तो यहाँ पे इसका लिंक इसके साथ में एस्टेब्लिश होएगा और ये लिंक यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो इन दिस वे आपका ये जो एडिशनल नोड था, ये आपका किसके पास इसका एड्रेस है, टी के पास, इसको डी एलोकेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्री फंक्शन। सो फ्री एंड पास द वैल्यू टी एड्रेस, आप इस नोड का एड्रेस किसके पास में है, जो एडिशनल नोड था उसका एड्रेस टी के पास में है। सो इफ यू कॉल फ्री फंक्शन, ये यहाँ से डी एलोकेट हो जाएगा। सो इन दिस वे आपका लिंक लिस्ट जो बचता है
वो लिंक लिस्ट आपके पास में आपका आंसर है जो आपने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया सर, दैट इज दिस वन. So 11 x raised to the power 14. So this is 11 14 minus 3 x raised to the power 10. So this is minus 3 10 and 4 x raised to the power 7 plus 8 x की power 6. तो यहाँ पर भी है 8 x की power 6, 5 x की power 4 and then 9 x की power 0. This one. So ये this is the method कि आप किस तरीके से पॉलिनोमियल को ऐड करेंगे. सो द इंटायर एल्गोरिथम के जो स्टेप्स थे वो आप एक साथ देख सकते हैं. द फर्स्ट, देयर आर टू पॉलिनोमियल. आप पॉलिनोमियल में दो इनपुट लेंगे. फर्स्ट इज फर्स्ट पॉलिनोमियल, सेकंड इज सेकंड पॉलिनोमियल, और उनका आंसर जो है वो सी में आप रिप्रेजेंट करेंगे. सो स्टेप नंबर 1, इनिशियलाइज पी एंड क्यू पॉइंटर टू द फर्स्ट नोड ऑफ पॉलिनोमियल ए एंड बी रिस्पेक्टिवली. सो पी को ए के ऊपर अपॉइंट किया, क्यू को भी असाइन किया बी के ऊपर. Now step number 2, allocate free memory space, that is C is equal to create new node, और D को आपने C के ऊपर असाइन किया. So D का काम अब आपको समझ में आ गया होगा. D is the tail of your third linked list. Okay, D is the tail. Okay, now repeat steps 4 5 6 while P is not equal to null and Q is not equal to null. तो आप एक while loop लगाएंगे और कंपेयर करेंगे. If exponent are equal, then add the coefficient and call. If x is not equal to 0, then call attach function. So attach function का रोल क्या है कि आपका एक नया नोड क्रिएट करेगा और लास्ट में उसके एक्सपोनेंट और कोफिशिएंट आप कॉपी कर देंगे. और जो डी का नेक्स्ट है, जो आपने लिंक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट किया था स्टेप नंबर 2 में, उसके नेक्स्ट में आप न्यूली क्रिएटेड नोड को न्यूली क्रिएटेड नोड को अटैच करेंगे. राइट दिस d next is equal to this newly created node and d is equal to I. तो d हमेशा टेल में होगा. तो इस फंक्शन में आप ये समझ लीजिएगा, आपका जो फर्स्ट पैरामीटर दैट इज अ कोफिशिएंट, दिस इज एक्सपोनेंट, और आप लिंक लिस्ट जो बनाएंगे, एक नया नोड क्रिएट करेंगे, उसके नेक्स्ट में आप उसको ऐड करेंगे, d के नेक्स्ट में आप ऐड करेंगे और d को आप एडवांस कर देंगे नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर. सो d हमेशा टेल का काम करेगा. Now after that दोनों पॉइंटर एडवांस होंगे क्योंकि एक्सपोनेंट आपके आपस में मैच हैं. So here p is equal to p next and q is equal to q next. So advance to next node. So the step number 4 is over. Now come to step number 5. If exponent of p is smaller than the exponent of q, तो bigger कौन है? That is a q. Okay. So आप attach function को कॉल करेंगे. कोफिशिएंट क्या होंगे? Q का कोफिशिएंट रहेगा और एक्सपोनेंट भी Q का रहेगा. सो कॉल अटैच फंक्शन. ओके, और एडवांस करेंगे. जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपका इसी तरह के स्टेप्स फिर ओपन हो जाएंगे और Q इज इक्वल टू Q नेक्स्ट. नाउ नेक्स्ट स्टेप 6, सब हो सकता है कि एक्सपोनेंट ग्रेटर हो P का. सो एट दैट मोमेंट आप अटैच फंक्शन को कॉल करेंगे जो भी बिगर एक्सपोनेंट होगा. सो द बिगर इज P. सो P का एक्सपोनेंट और P का कोफिशिएंट के साथ में और लिंक लिस्ट के लास्ट में अटैच करेंगे इस न्यूली क्रिएटेड नोड को, एंड द लास्ट नोड इज D. ओके, सो कॉल द अटैच फंक्शन. ओके, क्रिएट एंड एक्सपोनेंट को कॉपी किया, कोफिशिएंट को कॉपी किया, d next is equal to I and d is equal to I. सो P को एडवांस किया. ओके, क्योंकि आपने P को कॉपी किया और P को एडवांस कर दिया नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर. So in this way, step number 4, 5, 6, it is the part of while loop. तो यहाँ पे आपका कंपैरिजन का टास्क कंप्लीट हो गया. इसके बाद में इट मे बी पॉसिबल कि फर्स्ट पॉलिनोमियल के रिमेनिंग टर्म्स बचे हों, तो कॉपी रिमेनिंग टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल A. So while P is not equal to null, then call the attach function with P का कोफिशिएंट and Q का कोफिशिएंट. क्योंकि आप P आपका रिमेनिंग है तो डेफिनेटली P का कोफिशिएंट और Q का कोफिशिएंट वाइल लूप में लेंगे, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स भी हो सकते हैं और एक टर्म्स भी हो सकता है. अगर लिंक लिस्ट ऑलरेडी आप कंप्लीट कर चुके हैं तो ये लूप चलेगा ही नहीं, बिकॉज नल इज नॉट इक्वल टू नल, अदरवाइज ये लूप एग्जीक्यूट होगा. सो अटैच फंक्शन को कॉल करेंगे, नया नोड बार बार क्रिएट होगा और लास्ट में अटैच होगा, और आफ्टर दैट P एडवांस होगा, P इज इक्वल टू P नेक्स्ट, क्योंकि आप फर्स्ट पॉलिनोमियल को फोकस कर रहे हैं. जो अगर बचा है तो P एडवांस होगा. P किसके ऊपर लगा था? फर्स्ट पॉलिनोमियल के ऊपर. Now in the same manner, suppose
आपका सेकंड पॉलिनोमियल अगर बचता है, फर्स्ट पॉलिनोमियल ओवर हो गया है, सो कॉपी रिमेनिंग टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल बी. सो व्हाइल q इज नॉट इक्वल टू नल, देन कॉल द अटैच फंक्शन लाइक दिस. नया नोड क्रिएट होगा और लिंक लिस्ट के लास्ट में अटैच होगा और q को एडवांस किया. सो इन दिस वे इधर स्टेप नंबर 7 और स्टेप नंबर 8 में से कोई एक एग्जीक्यूट होगा. हो सकता है कोई भी एग्जीक्यूट ना हो. सपोज आपका पॉलिनोमियल एक साथ नल के ऊपर पहुंचते हैं p और q, तो एट दैट मोमेंट क्योंकि वाइल लूप में सबसे पहले टेस्टिंग ही हो रहा है, तो ये लूप भी नहीं चलेगा. और q भी अगर नल हो चुका है तो ये लूप भी नहीं चलेगा. ओके, सो इनमें से अगर एक नल हुआ है तो सेकंड चलेगा, अगर सेकंड नल हो चुका है तो ये ना चल के फर्स्ट आपका ये लूप चलेगा. तो रिमेनिंग टर्म्स आपके पॉलिनोमियल के थर्ड लिंक लिस्ट में कॉपी होंगे. नाउ द एडिशनल थिंग्स, स्टेप नंबर 9, क्योंकि अभी जो थर्ड लिंक लिस्ट आपका बना था उसके नेक्स्ट में नल डालना था, तो आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा डी नेक्स्ट इज इक्वल टू नल और एडिशनल नोड को डिलीट करना है. सो टी इज इक्वल टू सी, जो सबसे पहले एक नया नोड आपने जो बनाया था उसके ऊपर सबसे पहले टी को लगाया और सी को एडवांस किया. सी इज इक्वल टू सी नेक्स्ट. इट मीन्स सी अपने डिजायर्ड पोजीशन के ऊपर पहुंच गया जहां से आपका आंसर स्टार्ट हुआ था, और आप मेमोरी को फ्री करेंगे जो टी के साथ में एसोसिएट थी. सो फ्री टी. सो देयर आर 9 स्टेप्स. ओके, सो दिस इज द कंप्लीट पॉलिनोमियल एडिशन प्रोसेस. ये उसके स्टेप्स से जो आपको इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देने होंगे. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग के ऊपर फोकस करेंगे और पॉलिनोमियल एडिशन एल्गोरिथम को कंप्यूटर के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे. सो थैंक यू सो मच.